Very good afternoon, students. Now we comes on a new unit, and that is our fourth unit, which is a first order, first degree ordinary differential equation. अब सबसे पहले तो हम देखेंगे differential equation किसे कहा जाता है. Then we check ordinary differential equation, and then we check the degree and what is the order of the differential equation. One by one we see all that terms. So first is a differential equation. Which equation is called as a differential equation? An equation which contain a derivatives or a differential coefficient, that type of equation is called as a differential equation. Suppose अगर यहाँ पे ऐसे हम लिखते हैं, that is dy by dx equals to x square plus y square, then that is called as a differential equation because there is a derivative, there is a independent variable and there is a dependent variable. यहाँ पे x को कहा जाता है, x is a independent variable and that y is called as a dependent variable. Why it is a dependent? Because we are taking a differentiation of that with respect to x. So that type of differential equation is called as a differential equation. That type of equation, यहाँ पे y is a depend on x, so it is a dependent variable and x is a independent variable. So that is the differential equation. Differential equation is nothing but equation which contain a derivative or a differential coefficient. That is the differential equation. अब इसकी सब definition जो है आप लोगों को notes में मैं दे दूंगी. Then next is a ordinary differential equation. So what is ordinary differential equation? Mainly your differential equation is divided into two types. One is a ordinary differential equation and second is a partial differential equation. अब इसके पहले हमने previous में partial differentiation देखा है. अब partial differential equation मतलब जिसमें partial derivatives रहते हैं. That is अगर ऐसे फॉर्म में रहा x into del u by del x plus y into del u by del y equals to u, तो ऐसे फॉर्म में रहता है. यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव, देन इट इज कॉल्ड एज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब अगर यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव के फॉर्म में आपकी टर्म आ रही है, दैट इज d2y बाय dx2 प्लस 2dy बाय dx प्लस x इज इक्वल्स टू 0. अगर ऐसे फॉर्म में टोटल डेरिवेटिव के फॉर्म में दिख रहा है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, देन दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. सो रिमेंबर दैट जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या रहते हैं, टोटल डेरिवेटिव्स रहते हैं और दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज रेफर्ड विद अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब उसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी. और जहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ऑर्डिनरी किसे कहेंगे हम? द डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन total derivatives, not a partial derivatives, or the differential equation which is referred, वो किसके साथ referred रहता है? which is referred with single independent variable, जिसमें एक ही independent variable रहता है, that is called as a ordinary differential equation. तो ये तो हो गया ordinary differential equation, differential equation. And what is the order of differential equation? Now we can find the order of differential equation. अब the order of differential equation is nothing. क्या रहती है order? Order of differential equation is nothing but the highest order derivative occurring in that differential equation. अब अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कंसीडर करेंगे, दैट इज d2y बाय dx2 प्लस 3 d3y बाय dx3 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू सपोज दैट इज साइन एक्स. अब यहाँ पे देखोगे तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कहाँ, कौन सा डेरिवेटिव आप लोगों को यहाँ पे देखना है? विच डेरिवेटिव? दैट इज ऑफ ऑर्डर 3 d3y बाय dx3, इट इज ऑफ ऑर्डर 3. यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का है, सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया आपका d3y बाय dx3. सो ऑर्डर क्या हो गई इस डिफरेंशियल इक्वेशन की? यस, इट इज अ 3. द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द इक्वेशन. हाउ वी कैन गेट द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. The highest order derivative occurring in equation, that is called as the order of the equation. यहाँ पे d3y by dx3 है, तो इस इक्वेशन की ऑर्डर क्या हो गई?
What is the order of that equation? Here the order is 3. Its order is a 3. That is a third order differential equation. Now next is a degree of differential equation. Degree of differential equation. Now degree is nothing but the power of highest order derivative. Degree किसको कहा जाता है? Power of highest order derivative. Power of highest order derivative in equation. जो पावर रहता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन. सपोज अब यहाँ पे हम लेते हैं d2y/dx2, देन यहाँ पे हम लेंगे dy/dx होल स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 2x. ओके, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड देन वी हैव टू टेक द पावर. अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है यहाँ पे? इट इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, देयर इज नो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर. तो ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया. अब इसका पावर क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर है 1. तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई? 1. द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का और उसका पावर 1 है. सो यहाँ पे हमारी डिग्री हो गई, यस, व्हाट इज आवर डिग्री? 1. और कुछ अगर एग्जांपल देखेंगे आप लोग, जैसे अब इस प्रॉब्लम में अगर देखेंगे तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी? यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d3y/dx3 और इसका पावर है 1. तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी डिग्री हो गई आपकी 1. सो इन दिस वे वी कैन गेट द डिग्री, ऑर्डर एंड we see what is differential equation and ordinary differential equations. Then there is a solution. Now how we get the solution of differential equation? What is the solution? What that solution contains? We will see that. Now what is the solution of differential equation? Solution of differential equation is nothing but it is a relation between dependent and independent variable with some arbitrary constant and which does not involve any differential coefficients or derivatives. That is called as a solution of differential equation. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो y equals to cos omega t plus alpha, ये किसका solution है? That is a solution of this type of differential equation d2y/dt2 plus omega square y equals to 0. अगर इस equation को solve करेंगे so you get the value that y equals to cos omega t plus alpha. So that type of called as a solution of differential equations. अब हम देखेंगे यहाँ पे हम क्या स्टडी करने वाले हैं? वी स्टडी हियर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. अब यहाँ पे वेरियस टाइप्स है. फर्स्ट है वेरिएबल सेपरेबल, फर्स्ट टाइप है वेरिएबल सेपरेबल. देन नेक्स्ट है यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. देन थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. देन फोर्थ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. उसके बाद हम देखेंगे रिड्यूसिबल टू अबाउट टाइप्स. अब रिड्यूसिबल टू अबाउट टाइप्स का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे ऐसे भी कुछ इक्वेशंस रहेंगे दैट शुड बी रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू लीनियर और रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट. सो वो भी एक टाइप आएंगे, मतलब वेरिएबल सेपरेबल के बाद होमोजीनियस, उसके बाद रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये सारे टाइप्स हमें देखने हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में. अब सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड. अगर आपका फंक्शन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, दैट इज dy/dx इज इक्वल्स टू f of xy, and if we can separate the terms of x and derivative of x on one side and terms of y and derivative of y on another side, then that form is called as a variable separable form. मतलब आप अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं phi1 of x into dx equals to phi2 of y into dy. अगर ऐसे फॉर्म में आप अपने गिवन इक्वेशंस को लिख सकते हैं then that form is called as a variable separable form. That is called as a variable separable form. फिर आपको क्या करना है ऐसे फॉर्म में? you have to integrate on both side. You have to integrate on both side
to get solution. So we get the solution on integrating both sides. So that gives integral of phi 1 of x dx equals to integral of phi 2 of y dy plus integration constant c. So in this way we get the solution. If your equation should be in the form of वेरिएबल सेपरेबल. वेरिएबल सेपरेबल का मीनिंग आप देख लो कि क्या है कि आप वेरिएबल अगर सेपरेट कर सकते हो, मतलब इफ यू कैन टेक द टर्म्स ऑफ y on one side and terms of x on one side as well as their differential coefficient of x and terms of x on one side and differential coefficients of y and terms of y on another side. अगर ऐसे फॉर्म में आपको पॉसिबल है डिफरेंशियल इक्वेशन को करना, सो दैट वी सेपरेट द वेरिएबल्स एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल सेपरेबल मेथड. एंड नाउ वी विल सी द प्रॉब्लम्स ऑन दैट मेथड. Now we will see some problems. I have written here. First problem है dy by dx equals to e raised to x minus 2 है. We have to solve this. So सबसे पहले तो हम लिख लेंगे given first problem given differential equation. Which is our differential equation? That is dy by dx equals to e raised to x minus 2y. अब ये सेपरेट हो सकता है. अगर सेपरेट होगा so we use here variable separable. Yes हो सकता है. यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं e raised to x into e raised to minus 2y. ओके, सो दैट इम्प्लाइज अब क्या होगा, हम e रेस टू माइनस 2y को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे. यहाँ पे dy है और dx की टर्म यहाँ पे पॉसिबल है ट्रांसफर होना. तो हाउ वी राइट दैट इज अ dy बाय dx इक्वल्स टू e रेस टू x अपॉन e रेस टू 2y. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. उसके बाद क्या करेंगे, e रेस टू 2y यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे. सो e रेस टू 2y dy इक्वल्स टू dx हम इधर ले लेंगे. सो e रेस टू x इंटू dx. अब देखो क्या हो गया, वेरिएबल गेट अ सेपरेट. एक साइड y की टर्म आ गई, एक साइड x की टर्म आ गई. सो इजीली यू कैन गेट द इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं. अब करेंगे इंटीग्रेशन. ऑन इंटीग्रेटिंग व्हाट वी गेट ऑन इंटीग्रेटिंग e रेस टू द पावर 2y dy इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e रेस टू x dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. So that implies e raised to 2y अपॉन रिपीट जो कोएफिशिएंट रहता है यहाँ पे y का e raised to y की जगह यहाँ पे क्या है e raised to 2y है. सो जो कोएफिशिएंट है y का वी हैव टू टेक इट इन अ डिनोमिनेटर. सो e raised to 2y एंड y कोएफिशिएंट इन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. तो इस तरह से हमें मिल गया, क्या मिल गया, वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. अभी सॉलिड सबसे पहले तो यहाँ पे सेपरेट कर दी हमने टर्म, क्योंकि अगर बेस एक ही है पावर सेपरेट कर सकते हैं हम इसको. फिर हमने टर्म सेपरेट कर दी e raised to x अपॉन इसको डिनोमिनेटर में ले लिया. देन वी ट्रांसफर दिस टर्म टू दैट साइड, dx की टर्म इस साइड ट्रांसफर कर दी. उसके बाद हमने इंटीग्रेशन कर दिया. देन वी गेट द सॉल्यूशन. अब आगे का प्रॉब्लम देखेंगे. सेकेंड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, व्हाट इज आवर गिवन differential equation, that is x plus 1 dy by dx plus 1 equals to 2 e raised to the power minus 1. ऐसे फॉर्म में हमारा इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x plus 1 की टर्म एज इट इज रखेंगे, dy by dx भी एज इट इज, देन 2 अपॉन e raised to the power y minus 1. ये जो e रेस टू माइनस 5 था उसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे. देन x प्लस 1 dy बाय dx इक्वल्स टू 2 माइनस e रेस टू y अपॉन e रेस टू y. अब क्या करेंगे, अब ये dx की टर्म है, x प्लस 1 की टर्म है. हम dx डिनोमिनेटर में है तो dx यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. तो यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन पॉसिबल है. dy इधर है तो y की टर्म हम इधर ले लेते हैं ऑन दैट साइड. So what we do, we take that term on that side. यहाँ पे e raised to y न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 माइनस e raised to y डिनोमिनेटर में आ जाएगा, dy एज इट इज रहेगा और यहाँ पे ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा और ये dx यहाँ पे चला जाएगा. अब आगे आप लोगों को ध्यान में हो गया होगा कि हाउ टू इंटीग्रेट. ऑन इंटीग्रेटिंग अब देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग e raised to the power y अपॉन 2 माइनस e raised to y dy इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx
अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब जरा ध्यान से देखेंगे तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट 2 माइनस ई रेज टू वाई. इफ यू कैन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई टू दैट टर्म 2 माइनस ई रेज टू वाई, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस ई रेज टू वाई, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस ई रेज टू वाई. बट अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ई रेज टू वाई है बट देयर इज नो माइनस, सो वी एडजस्ट हियर माइनस. सो माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस यहाँ पे भी ले लेंगे. तो अब ये कौन से फॉर्म में आ गए, हाउ इज दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx. ऐसे फॉर्म में ये इक्वेशन है, मतलब ऊपर डेरिवेटिव है और उस नीचे उस डेरिवेटिव की टर्म है, मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन रहता है log ऑफ एफ ऑफ एक्स. सो यहाँ पे हुई उसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस, और इस टर्म का इंटीग्रेशन दैट इज एफ डैश ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ वाई, दैट इज log ऑफ एफ ऑफ वाई, दैट इज log ऑफ 2 माइनस ई रेज टू वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे इट इज इन द फॉर्म 1 बाय एक्स. एक्स प्लस 1, 1 तो कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट हियर log ऑफ 1 एक्स प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. कैन राइट प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. अब यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है हमको करना. अब अगर ये भी टर्म log के फॉर्म में ये भी है तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, वी कैन कंसिडर इट एज अ log ऑफ c, ऐसे कंसिडर कर सकते हैं. सो व्हाट वी गेट देयर, दैट इज अ माइनस log ऑफ 2 माइनस ई रेज टू वाई इक्वल्स टू, इट इज इन द फॉर्म ऑफ log a प्लस log b, दैट इज log ऑफ x प्लस 1 इंटू c. सो that comes in a power 2 minus e raised to y raised to minus 1, that is a log. Here is also log of x plus 1 into c. So I will continue this step on that side. सो ये जो माइनस ये साइन है पावर में चली जाएंगी, सो इट कैन बी रिटन एज log ऑफ 2 माइनस ई रेज टू वाई रेज टू माइनस 1 इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1 इंटू c. सो दैट इज अ 1 अपॉन 2 माइनस ई रेज टू वाई इक्वल्स टू x प्लस 1 into c. Okay, and finally that term, if you transfer this side, so you can get in this, or if you can put as it is also, that is the final answer. You can also write up to that step also, you get the marks. Okay, so that is your solution of given differential equation. Or you can, after simplification, you write in this way, you can remove the log on both sides. जितना simplification possible है उतना आप कर सकते हैं वहाँ पे, so you can do that. सो ये हो गया आपका सेकंड प्रॉब्लम. अब आ जाते हैं हम थर्ड की तरफ. अब थर्ड प्रॉब्लम में हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वी डू इन अ थर्ड प्रॉब्लम. तो यहाँ पे है y बाय एक्स dy बाय dx इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये पूरी टर्म लिख लेंगे एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर. अब अगर थोड़ा सा आप रूट की तरफ ध्यान दो, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वाई स्क्वायर इज कॉमन टू द लास्ट टू टर्म्स, सो वी टेक अ वाई स्क्वायर कॉमन. तो हाउ वी राइट दी, सो ये तो एज इट इज लिख लो. सो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम ले लेंगे वाई स्क्वायर कॉमन, तो ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर. उसके बाद y बाय एक्स dy बाय dx इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये कॉमन ब्रैकेट और ये भी निकल जाएंगे यहाँ से टर्म, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 1 निकल जाएगा और यहाँ से वाई स्क्वायर, सो 1 प्लस वाई स्क्वायर. सो इन दिस वे वी गेट, अब यहाँ पे रूट को हम सेपरेट कर देंगे, सो y बाय एक्स dy बाय dx इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड 1 प्लस वाई स्क्वायर. ओके, सो इस तरह से रूट भी सेपरेट हो गए, एक x की टर्म हो गई एक y की.
अब ऑब्वियस है हम क्या करेंगे, y की टर्म को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे और x की टर्म को उधर ट्रांसफर कर देंगे. सो व्हाट वी गेट देयर, y dy एज इट इज रहेगा. ये रूट की टर्म y की इधर ट्रांसफर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वेयर. यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. यहाँ पे x इंटू डी एक्स. सो वी राइट हियर x इंटू डी एक्स. अब आगे देखो क्या करेंगे फिर. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड. सो y dy अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वेयर. या फिर हम इसको एक और बात यहाँ पे कर सकते हैं, y इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर. ये अगर न्यूमरेटर में चले जाएंगे तो पावर -1/2 इंटू डी वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे इसको भी हम 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 1/2 इंटू एक्स डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी. अब ये मैंने इसलिए ये फॉर्म में लिखा टू द पावर 1 प्लस वाई स्क्वेयर रेस टू -1/2 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 1/2. Why we write this? Because there is some standard formula we can apply here, which is that. So I write here. You have seen all that formula in a 12th. So you have to revise here. See, which is that if your equation should be in the form of f dash of x into f of x raised to the power n dx. अगर आपका इक्वेशन ऐसे फॉर्म में आता है इंटीग्रेशन, so that should be equals to, क्या रहता है, that should be equals to f of x raised to the power n plus 1 upon n plus 1. इसका रिजल्ट आता है इस इंटीग्रेशन का f of x raised to n plus 1 upon n plus 1. So you have to use that. यहाँ पे f dash of x मतलब डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म. अब अगर 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, y तो है यहाँ पे पर 2y होगा, तो हम 2 एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे 1/2 ले लेते हैं. यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं और यहाँ पे 1/2 एडजस्ट कर देते हैं. अब अगर ध्यान से देखोगे, दैट इज f dash y एंड दैट इज f of y रेज़ टू द पावर n की जगह -1/2 है. यहाँ पे अगर देखोगे तो दैट 2x इज f dash of x, ये ब्रैकेट हो गई f of x एंड 1/2 हो गया n. तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट भी इस फॉर्म में ही होगा. सो हाउ वी कैन राइट दैट इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2. हियर इज अ लॉग ऑफ, सॉरी लॉग नहीं, क्या होगा यहाँ पे f of x रेज़ टू n plus 1. सो 1 प्लस वाई स्क्वायर रेज़ टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1. अब -1/2 प्लस 1 क्या होगा आपका 1/2, डिनोमिनेटर में भी 1/2 इक्वल्स टू 1/2. यहाँ पे क्या होगा रिजल्ट, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एन प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट. सो इन दिस वे वी गेट दैट एंड दैट इम्प्लाइज ये 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में. सो 2 गेट कैंसल. यहाँ पे भी ये 2 न्यूमरेटर में चला जाने के बाद 2 गेट कैंसल. तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, या फिर आप इसको एज इट इज ही लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2. यहाँ पे 3 एज इट इज रहेगा, 2 कैंसल हो जाएगा. सो दैट इज अ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी. सो इस तरह से आपको मिल जाता है उसका आंसर. अब यहाँ पे हम 4th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. बहुत इजी प्रॉब्लम है, मैं आधा आप लोगों को करके देती हूँ, देन यू कैन कंटिन्यू इट. ओके. सो व्हाट इज हियर, x³ dy/dx इक्वल्स टू, ऑब्वियस है ये y की टर्म है, हम इसको RHS को ट्रांसफर कर देंगे तो x y² माइनस 3y². सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y² गेट अ कॉमन, यहाँ पे x माइनस 3. ओके. सो व्हाट वी गेट देयर, अब x की टर्म सभी इधर ट्रांसफर कर देंगे और y को इधर ले लेंगे. सो इट बिकम 1/y². ये y² अगर यहाँ पे आ गया तो डिनोमिनेटर में dy इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन x³ इंटू dx. वी राइट इन दिस वे. ओके. सो 1/y² dy इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू सेपरेट द टर्म 1/x² माइनस 3 अपॉन x³
इंटू डी एक्स। इस तरह से हम कर देंगे इसको सेपरेट। तो ये हो गई अब हमारी। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, हियर we separate the terms and now we integrate on both sides. On integrating, what we get here, y raised to the power minus 2 dy equals to, here is 1 upon x square. So first what we do, we transfer this term to numerator, so easily we can integrate. And here is x raised to the power minus 2 dx, then minus of 3 x raised to minus 3 dx. So we separate the term here, y raised to minus 2 dy, x raised to minus 2 dx, minus 3 into x raised to minus 3 dx. अब यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेट। ऑन इंटीग्रेटिंग अब इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ y raised to minus 2 dy equals to x raised to minus 2 dx minus 3 into integral of x raised to minus 3 dx plus integration constant c. So here is a y raised to the power minus 2 plus 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पे x रेस्ट टू द minus 2 plus 1 अपॉन minus 2 plus 1, माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर minus 3 plus 1 अपॉन minus 3 plus 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. So that gives y raised to minus 1 upon minus 1 equals to x raised to minus 1 upon minus 1 minus 3 into, here is x raised to minus 2 upon minus 2 plus integration constant c. So in this way we get that, क्या किया हमने यहाँ पे टर्म को सेपरेट कर दिया, सभी y और x की टर्म हमने न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर दी। टर्म सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे इट इज इन द फॉर्म x रेज टू n, x रेज टू n की इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 दैट इज माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, x रेज टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 इंटू x रेज टू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1. So finally what we get, minus 1 by y equals to minus 1 upon x, minus minus become a plus 3 by 2 1 upon x square plus integration constant c. So in this way we get that all the terms, so that or we can transfer this term to that side. So what we get 1 by x, ये plus हो जाएगा, ये minus 3 by 2 1 upon x square minus 1 by y equals to integration constant c. तो इस तरह से हमें इसका आंसर मिल जाएगा. अब ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखा था, फिफ्थ प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये कंबाइन में टर्म है, दैट इज इम्प्लिसिट टर्म के फॉर्म में tan ऑफ y माइनस एक्स. इसको पॉसिबल नहीं है सेपरेट करना, tan ऑफ y और tan ऑफ x ऐसे फॉर्म में नहीं लिख सकते. अब अगर ऐसे फॉर्म में टर्म आई, जैसे इस प्रॉब्लम में भी है, इम्प्लिसिट के फॉर्म में है, तो उस टर्म के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है. रिमेंबर दैट थिंग, इफ फंक्शन इज इन implicit form, then use a substitution. You have to use a substitution. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, put y minus x is equals to t. So that implies dy by dx minus x, derivative of x is a 1, equals to dt by dx. Okay. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, dy by dx की वैल्यू निकाल लेंगे. So that is replaced by another term. So that implies dy by dx equals to dt by dx plus 1. So ये इक्वेशन जो है हमारा, that is our equation 1. So what we do, we using in equation 1. equation 1 में हम क्या करेंगे, ये सब चेंजेस करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, that implies dt by dx plus 1 plus x as it is रहेगा, y minus x रिप्लेस हो जाएगा आपका tan t and that is equals to 1. अब क्या करेंगे हम, अब ये सभी टर्म्स सेपरेट कर देंगे. यहाँ पे प्लस 1 है, so आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt by dx plus 1 plus x into tan t equals to 1. अब ये 1 इधर चला जाएगा, so that gives dt by dx plus x into tan t
इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, सो दैट इज इक्वल्स टू 0, और वी कैन राइट dt बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x इंटू tan t। तो अब क्या करेंगे हम, dt बाय tan t इक्वल्स टू माइनस x इंटू dx, ओके। Now what we do here, we can transfer this tan to numerator, so it become a cot t dt equals to minus of x dx। अब यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग दैट गिव्स अ cot of t dt माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो cot t का इंटीग्रेशन हो गया आपका log ऑफ sin t इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो फाइनली सिंपली आपको क्या करना है, जो आपने सब्स्टिट्यूशन की थी t के लिए, सिंपली वहां पे आप y माइनस एक्स कर दो, माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो इन दिस वे वी गेट द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो ये प्रॉब्लम आपके होमवर्क के लिए, आपको याद आ ही गया होगा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इसके लिए करना है। ये प्रॉब्लम भी आप कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसको सेपरेट कर देना, ई रेस टू एक्स प्लस वाई को ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई ऐसे लिखो, ई रेस टू वाई माइनस एक्स को आप सेपरेट कर सकते हैं, ई रेस टू वाई एंड ई रेस टू माइनस एक्स। सो इन दिस वे you can separate the term and you can get the answer. So hope you understand that all part that is regarding the variable separable method. अगले लेक्चर में हम another method देखेंगे, तब तक के लिए अब यहाँ पे हम करते हैं स्टॉप। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।